Now I would be handing over the mic to Ekta ma'am. Ekta ma'am. Thank you. I'd like to first apologize for being late. I tried to get out of the press conference because of a bad back, but being colors and expecting the best out of me, they insisted I come. So I'm really sorry. I won't be able to shake this hand because it's gone. Yeah, so I'll come to the point. The two promos, as you've seen, one is a absolute thriller. It starts. Should I first talk about the acting team that is here? I think I'll start with them. So, Kavach is the second season of a very, very popular first season. Manisha, being Manisha, wanted to do this second season for a long time. She felt that while people didn't know this, but Kavach did fabulous numbers. And she wanted to do a second season. And I can never say no to Manisha. She's dying. Guys, everyone, we must see Manisha. Can we have Manisha on stage, please? Can we have Manisha on stage? I think we should have Manisha on stage. Come on, Manisha. You are my partner in crime in this. Please come up. You've got me here with a frozen shoulder. You better come on stage. So anyway, Manisha is told me we should do the second season, and we did that. And I swear on her red pants that this is probably the most exciting season of any of the shows I've done. I think I usually mess up on the second season. I think Nagin 1 was great, Nagin 2 was a bit of a mess up, and Nagin 3 picked up again. So, don't make faces at me. I'll say everything politically incorrect. So, I think this is by far the best second season of any show I've written, at least on television. And I hope you guys like it, because while it has got nothing to do with the first season, it deals with occult. Very, very, of course, it's known as a dark science, and it's pretty abused because people use it in real life. We, of course, run disclaimers through the show. And, of course, we will play a positive story behind it. But horror, occult, spirits, I feel are a superb thing for me to do. And I actually love doing it. So I think Kavach is me going back to that genre. Thank you. So we have those crows and that eerie tree for Kavach. Oh, how nice. Yeah. So can we have the cast of the next show, please, before I talk about them? Hello, hello, how are you? Hi, 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 hi. Hi, Pearly, how are you? Bepana Pyar is this, it's actually at the base of it a love story, but it's a love story that is written in a page-turner thriller way. It has from the time it begins till I think the 15th episode, everything you see in the first 15 episodes goes for an absolute turn after the 15th episode, and this is the format that continues through the show. It's probably the most riveting story I've done in a long time. I think I and Manisha were discussing the fact that we were going to do, don't shoot me, that we were going to do a nice thriller, because television has seen supernatural, television has seen love stories, television misses a typical nice fiction thriller that makes you come back day on day to see what's going to happen next and how which character will turn and which character will turn out to be great. But at the heart of it, it's a love story. A love story. It's also interesting because it's the first show I think I've done from the point of view of a man. Till a long part of the show, and probably till all of the show, the male character remains to be a very important character. And he goes through 3 phases of one, absolute destruction and trauma in love, one, a bitter lover, and one, a passionate young lover. So it's an interesting way. I hope Pearl does his best in this. And of course, the 3 women are the 3 women in different stages of his life. So we'll see how that pans out. So thank you. All right.
Okay, now ladies and gentlemen, let me call upon the entire cast of both the shows to join us on the stage for a group picture there. So can we have a group picture, please? Thank you everyone for being with us today. To experience more thrill, tune into Colors to watch Kavach Mahashivratri every Saturday and Sunday, 8 p.m. starting 25th May, and Bepan Pyar every Monday to Friday, 10 p.m. starting 3rd June. And बट कुछ कंटिन्यूसली योर शो डूइंग वेरी वेल और यहाँ पे भी कुछ अलग दिखाई दे रहा है, तो क्या कहना चाहिए? बेपनाह प्यार अलग है एंड बट यू नो कुछ पता नहीं होता है, हम पूरी कोशिश करते हैं फिर शो नहीं चलता तो बहुत बुरा लगता है. तो एक्सपेक्टेशंस करना मे बी आफ्टर सो लॉन्ग थोड़ा बहुत मैंने कम कर दिया है. बट आई डू होप कि इतनी जो मेहनत की है टीम ने, 6 महीने लगा दिए शो बनाने में, आई होप लोगों को पसंद आए. दैट्स ऑल आई होप यू नो एट द एंड. कवच मान जो है मोना थी उसमें उनको बहुत क्लोज फ्रेंड है आपकी, एंड अब कवच तुम्हें दीपिका है तो आई एम क्वाइट हैप्पी और बहुत एक्साइटेड हूँ कि फ़र्स्ट टाइम मैं सुपर नेचुरल जॉनर को जो है करने जा रही हूँ. और हर दिन बहुत चैलेंजिंग होता है और बहुत मज़ा आता है सेट पर. इनफैक्ट बहुत अच्छी टीम मिली है मुझे, बहुत अच्छे डायरेक्टर मिले हैं और को एक्टर्स बहुत सपोर्टिव हैं. हम लोग काफ़ी रिहर्स करते हैं देन वी डू द सीन, तो काफ़ी अच्छा होने वाला है. आई फील सो. इट्स अ प्लेजेंट कोइंसिडेंस कि इस शो में भी नाम मुझे संध्या मिला. मतलब पहले से ही स्क्रिप्ट में संध्या नाम था और जब मैं सिलेक्ट हुई एंड देन आई गेट टू नो 2 दिन पहले शूटिंग से कि संध्या ही है, तो मुझे यही सोचा कि गॉड का एक अच्छा प्लेजेंट कोइंसिडेंस है. और ऑल्दो मेरी ऑडियंस मुझे संध्या नाम से ही ज़्यादा जानती है. हाँ, बट ये किरदार उस संध्या से बहुत डिफरेंट है. शी इज़ अ मराठी गर्ल और इंडिपेंडेंट है, केयरिंग है, लविंग है, बिलीव्स इन ट्रू लव. और उसके सिबलिंग्स उसको शी लुक अप टू हर. और बेसिकली या शी बिलीव्स इन गॉड एंड कुछ एक इनऑस्पिशियस टाइम में वो महाशिवरात्रि के दिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है हिवॉक, जिससे उसकी लाइफ के अंदर एक हिवॉक हो जाता है टू वेदर टू फॉलो हर हार्ट और माइंड.
Yes, now it's like I'm from past 3 days I'm continuously going here and there and then going back on shooting. So I have a very good support system at home. I live in joint family. I live in joint family and I have sister-in-law, mother-in-law. She has also a kid. तो मेरे बच्चे के साथ में एक कज़न भी है तो जो कि 20 दिन छोटी है तो थोड़ा हो जाता है. और ऑल्सो रोहित ऑल्सो टेकन अ ब्रेक फॉर 2-3 मंथ्स कि जब तक मेरा इस तरह का शूटिंग स्केड्यूल है और इधर उधर PR एक्टिविटीज़ हैं तब तक जो है सो हमको एटलीस्ट ये हो कि पापा तो देखने को मिल रहे हैं. थैंक यू. समय लगा आपको तैयार होने के लिए? ज़्यादा समय तो नहीं लगा है, जस्ट एन हाफ एन आवर. इज़ जस्ट अ नाइस कलर जो कि मेरी स्किन टोन को और ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है और ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज द कलर इज़ सो प्रिटी. एंड आई थैंक टू आकांक्षा माई स्टाइलिस्ट हु ब्रॉट मी दिस सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस. पहला सीजन काफी हिट रहा है, कुछ सेकंड सीजन के बारे में एज एन एक्टर का एक्सपेक्टेशन? बहुत पहला सीज़न बहुत अच्छा था और उसी तरह से सेकंड सीज़न भी मतलब हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं तो हर दिन बहुत चैलेंजिंग होता है. स्टोरी इतनी अच्छी जैसे कि आपने देखा अभी कि एक लड़की है, एक सिंपल लड़की है, उसकी लाइफ में इस तरह से हिवाक हो जाता है महाशिवरात्रि के दिन कि गॉड ने उसको कोई और लड़का दिखा दिया एंड शादी किसी और से हो रही है तो वो किसको चूज़ करेगी, अंगद को या कपिल को. तो वो एक बहुत ज़्यादा हिवाक है एंड कन्फ्यूजन्स हैं एंड देन वो अपनी फैमिली के लिए कैसे कवच बनेगी तो और विद सुपरनैचुरल थिंग्स एंड घोस्ट एंड एवरीथिंग. तो अगेन बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं रास्ते में और उसको कैसे वो चैलेंजेस को लेती है एक सिंपल लड़की. तो बहुत अमेजिंग है, स्टोरी बहुत अमेजिंग है. मैम ने बहुत 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 अच्छा लिखा है. आई फील आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे इस स्क्रिप्ट पे काम करने का मौका मिला. आखिर में अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? आई एम थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू. पिछले 2 साल से मैं नहीं हूँ टेलीविज़न स्क्रीन पे बट आपने मुझे इंस्टाग्राम पे बिकॉज ऑफ़ योर मेहनत इतने सारे VM मेरे पास्ट वर्क को बार बार उस पर एडिटिंग करके जिसमें मैं खुद से जानती हूँ कि एडिटिंग में कितना टाइम लगता है मगर वो लोग वीडियोज़ और एडिटिंग करके मुझे बार खबरों में रखते हैं. तो वो आई थिंक मुझे अभी तक के बेस्ट फैंस मिले हैं जो मैं स्क्रीन पर ना होते हुए भी वो फिर भी मुझे चाहते हैं. आई थिंक मैं आज वापस जो आई हूँ अपने फैंस की वजह से ही आई हूँ बिकॉज दे वॉन्ट टू see my work more and more. They want to see me performing. Thank you so much. मुझे सॉरी मैं सोच रही थी एक बारी बाल दे. मैम क्वेश्चन कहीं से वैसे हाँ सुन लिया उन्होंने सुन लिया. सेंटर पे लुक ना. हाँ रोल है. सबसे पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है, रोमांटिक थ्रिलर शो है और रघुवीर जो कि मेल लीड है उनकी लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में 3 अच्छी खूबसूरत लड़कियां आती हैं और उनकी लाइफ में कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो आपको शो देख के पता लगेगा. सो आई थिंक इट्स अ कैरेक्टर आई एम प्लेइंग सुकन्या हु इज़ अ लंदन बेस्ड गर्ल जो कि UK के रिचेस्ट बिजनेसमैन की बेटी हैं और रघुवीर की लाइफ में आती हैं. रघुवीर से बहुत प्यार करती हैं और कैसे और कब क्या कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो आप कहानी देख के पता लगेगा. बात करिए तो मतलब कितना रिलेट करते हैं आप अपने कैरेक्टर से पर्सनली? बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैच करती हैं जैसे कि आई एम नॉट फ्रॉम लंदन, आई एम फ्रॉम दिल्ली बट जो क्लासीनेस बात करने में जो उनकी है वो मुझ में भी कहीं ना कहीं है और बाकी कुछ चीज़ें जो टोटली ऑपोजिट है. सो जो ऑपोजिट वाली चीज़ें हैं जो क्या डिफरेंट शेड्स आएंगे उनके कैरेक्टर में छोटी चीज़ें वो आपको शो देख के पता लगेगा. ये फर्स्ट शो है जी मैंने बालाजी में काफ़ी ऑडिशंस दिए थे और सबसे पहले एक वेब शो के लिए मैंने साइन किया था जिसकी वजह से वेब शो आई थिंक गॉट डिलेड और फिर इस शो के लिए ऑडिशन दिया एंड दैट्स हाउ आई गॉट द रोल ऑफ. आपका लुक भी काफ़ी रिच दिखाया गया है जी. थोड़ा सा बताइए लुक के ऊपर कितना काम किया है? क्योंकि लंदन की जो है लड़की हैं जो लंदन की हैं तो बहुत क्लासी बहुत ही पॉइज्ड और रिच फैमिली को बिलोंग करती हैं तो लुक भी ऐसा ही है कि मॉडर्न क्लासी रिच अर्बन ऐसा ही लुक रहेगा.
your new show. जी. And how was your experience working with Pearl and with the others? अमेजिंग. पर्ल हो चाहे इशिता हो या फिर अपर्णा हो, तीनों ही बहुत ही एक तो टैलेंटेड एक्टर्स हैं और टैलेंटेड के साथ साथ ना बहुत ही कंफर्टेबल वाइब उन्होंने और कंफर्टेबल फील कराया मुझे ऑन द सेट. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि ऐसा एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है जब से हमने शूट करना स्टार्ट किया है. एंड वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे जो मेरा पहला शो मिला है वो ऐसे एक्टर्स के साथ मिला है जो कि टैलेंटेड होने के साथ साथ दे आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो. Also, the audience are guessing that it's an love triangle story. Also. जी. You can shed some light on that. जैसा कि एकता मैम ने भी बताया था कि रघुवीर की लाइफ में 3 डिफरेंट स्टेजेस दिखाएंगे. 3 लड़कियां आती हैं और उसके बाद क्या होता है, कौन पहले आ रही है, फिर क्या होता है, वो सब के लिए आपको शो देखना पड़ेगा. ऑफ स्क्रीन किस तरह का माहौल है? लाइक सेट्स पे बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही फ्रेंडली वाइब है. जो मैंने जैसे सुना था कि टीवी के शूट्स होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मैंने एक्चुअली में अभी देखा है, जाना है कि कैसे होता है. आई वॉज़ वेरी वरिड कि कैसे होगा, क्या होगा, बट बहुत ही काम, वेरी फ्रेंडली एंड वेरी नाइस एक्सपीरियंस. ओके जी, साहब में पहला शो है तो मतलब यही शो आपने क्यों चुना पहले करने के लिए? व्हाई नॉट फिल्म्स? ऑनेस्टली मुझे अभी कुछ ही टाइम हुआ है बॉम्बे आए हुए. इट्स जस्ट बीन 2 years, 1.5 2 years. आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई 2nd year सून. और जो ये कैरेक्टर जब मेरे पास आया था जिस ऑडिशन के लिए, आई कुड रिलेट वेरी वेल टू इट. मुझे लगा था कि बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत एक्साइटिंग होगा टू शूट फॉर इट. तो जो मेरे पास पहले अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने वो ग्रैब करी. मेरा मानना है कि एक एक्टर या नेवर से नेवर, और एक एक्टर को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, चाहे वो टेलीविज़न हो, फिल्म्स हो या वेब हो. जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिले, हमें तो मतलब मौका चाहिए टू परफॉर्म. थैंक यू. पूछ लो. ओके, सबसे पहले तो शो के बारे में बताइए. कवच, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? देखिए, कवच जो है बहुत ही यूनिक स्टोरी लाइन के साथ आ रहा है. हॉरर शो है और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो लोगों को बहुत पसंद आएगा. और मैं आशा करता हूँ कि हमारी ऑडियंस जो है शो को पसंद करे, हमारे कैरेक्टर्स को पसंद करे. ओके जी, साहब किरदार के बारे में कुछ बताइए. किस तरह किरदार मेरा, मैं इसमें कपिल का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो कि नमिक यानी अंगद जो प्ले कर रहे हैं उसका फ्रेंड है. और इतना ही कह सकता हूँ, बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है और बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है जो कि ऑडियंस को पसंद आएगा फॉर श्योर. फर्स्ट पार्ट काफ़ी अच्छा गया, फर्स्ट पार्ट अच्छा गया. सेकंड पार्ट का देखिए, फर्स्ट पार्ट बिल्कुल अच्छा गया और प्रेशर ऐसा तो मैं क्या कहूँ. देखिए, एज एन एक्टर हम 100% दे सकते हैं अपना, एंड हम कर रहे हैं पूरी मेहनत. और आई एम श्योर बिकॉज ऑफ द स्टोरी लाइन इज़ सो गुड, द कैरेक्टर्स आर सो गुड, दे आर सो अमेजिंग, तो ऑडियंस को 100% पसंद आएगा और नंबर्स तो आ ही जाएंगे. प्रोमो भी काफ़ी अच्छा जी. प्रोमो के बारे में मैं यही कहूँगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा प्रोमो. और जितने भी रिव्यूज़ आए हैं अभी तक फैंस के, और जितने भी मेरे रिलेटिव्स के, मेरी फैमिली के, तो सबके अच्छे ही रिव्यूज़, पॉजिटिव रिव्यूज़ आए हैं. अभी तक एक भी कुछ ऐसा नेगेटिव रिव्यू नहीं आया है. तो पर्सनली भी अच्छा लगा और लोगों से भी अच्छा रिव्यू मिला. तो इट्स ऑल. इंडस्ट्री से कोई रिव्यू मिला हो जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो? इंडस्ट्री से कोई रिव्यू सबसे बेस्ट हो अबाउट द शो? मेरे जो गिने चुने दोस्त हैं इंडस्ट्री में, उन्होंने तो यही कहा है कि उन्हें बहुत पसंद आया है प्रोमो. एंड अगर उन्होंने कहा है, वो इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, तो आप समझ ही सकते हैं. शो का नाम है बेपनाह प्यार. तो कि Guys, please be quiet. Please respect. Thanks. सर रेडी? ओके, अपना शो के बारे में कुछ बताइए, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? शो का नाम है बेपनाह प्यार. ऑफ कोर्स प्यार मोहब्बत की कहानी है. मैं प्ले कर रही हूँ बानी, और रघुवीर और बानी बहुत ज़्यादा प्यार में हैं और एक बहुत ही हैप्पी कपल हैं. दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लाइफ में जो आपको हमेशा चाहिए होता है वो मिलता नहीं है. और कई बार जब मिल जाता है, जिस चीज़ को आप अपने दिल के एकदम करीब रखना चाहते हैं, कभी उसको गंवाना नहीं चाहते, ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि वो आपसे दूर हो जाता है. लेकिन लाइफ है, आपको हर चीज़ से डील करना पड़ता है. सो यू हैव टू डील विद एवरी इमोशंस. तो ये रघुवीर की कहानी है कि कैसे, क्या वो कभी मूव ऑन कर पाएगा, अगर कर पाएगा तो कैसे करेगा, क्या होगा, क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और आएगा, क्या वो अपने पुराने
पुराने प्यार को भुला पाएगा. सो इट्स अ जर्नी एंड इट्स ऑल्सो अ थ्रिलर, इट्स अ मिस्ट्री. सो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इंक्लूडेड होंगे और आप लोग को देखने में एज व्यूअर्स बहुत ही अच्छा लगेगा. ओके जी, आपने आपके किरदार के बारे में कुछ बताइए कि जिसमें हमने देखा 3 लड़कियां हैं जी, उसके बारे में. अब आपका किरदार क्या है, क्या मेरा किरदार मैं उसकी वाइफ, आई एम प्लेइंग हिज वाइफ एंड सिंपल सी लड़की है, हैप्पी है, खुश रहती है, बहुत पॉजिटिव लड़की है और प्यार में बहुत ज़्यादा विश्वास करती है. और रघबीर और बानी एक ऐसे जो बहुत ही हैप्पी कपल होते हैं, टू मच इन लव, प्योर हार्टेड, एकदम डेप्थ वाला प्यार है उन दोनों का. और फिर कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, प्रोग्रेस करेंगी, वो आपको शो में देखना पड़ेगा. लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस से? मैं फ़ैन से कहना चाहूँगी कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, हमको बेशुमार मोहब्बत देते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे शो को बेपनाह प्यार दीजिए. इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आपको देखना पसंद हैं. द कास्ट इज़ अमेजिंग, वी ऑल आर वर्किंग रियली हार्ड एंड वी आर रियली होपिंग कि आप हमें बहुत सारा प्यार दें. प्रोमो को बहुत प्यार मिला है, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट. और आप इस शो को भी अपना उतना ही प्यार देते हैं. थैंक यू. जस्ट सेकंड मैम, जस्ट सेकंड रुको ना, बिल्कुल यार. अभी तक कहाँ से जो म्यूचुअल्स ले रहे हैं? बस थैंक यू मैम. ओके इशिता, सबसे पहले तो शो आने वाला है, नया शो है और फिल्म में अब तक देखा था आप जो है एंट्री होने वाली है टीवी में, कितने एक्साइटेड है और थोड़ा सा किरदार के बारे में. इनफैक्ट मैंने टीवी से ही शुरुआत की थी और ऑलमोस्ट 3-4 years बैक आई स्टार्टेड फ्रॉम टीवी. फिर मैंने फिल्म्स की, फिर टीवी किया. सो एज एन एक्टर आई ऑलवेज वांट टू नॉट लिमिट माई सेल्फ कि मैं सिर्फ टीवी करूँगी या सिर्फ फिल्म करूँगी. मुझे सब अच्छा काम करना है, अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करने हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स करने हैं. सो हियर आई एम विद बेपनाह प्यार, जो बहुत ही जल्द आने वाला है टीवी पे 3 जून रात को 10 बजे ऑन कलर्स. एंड आई एम वेरी वेरी थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड अबाउट इट. ओके इशिता, इसी के साथ में किरदार के बारे में कुछ बताइए, किस तरह के किरदार में आप इसमें नजर आने वाली है? तो मेरे कैरेक्टर का नाम प्रगति है एंड शी इज़ टुडेज़ गर्ल, वेरी मॉडर्न बट शी इज़ क्लम्जी एट द सेम टाइम. शी इज़ वेरी सिंसियर बट थोड़ी फॉरगेटफुल है, भूल जाती है, कंफ्यूज रहती है. सो दीज आर स्मॉल एलिमेंट्स इन अ कैरेक्टर विच मेक अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फन टू वॉच. शी इज़ अ गो गेटर, काम के लिए बहुत सिंसियर है, अपने परमानेंट जॉब चाहिए उसको. तो एक वो नया इंसान होता है जब कॉलेज से निकल के जॉब की शुरुआत करता है, तो जो जितनी एनर्जी उसमें रहती है कि रात को 12 बजे बुलाओ तो वो आ जाएंगे क्योंकि उनको काम करना है, मेहनत अपना दिखाना है कि आई कैन डू दिस. शी इज़ दैट. इसके अलावा कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी स्टारकास्ट, मतलब बड़ी स्टारकास्ट है, पर्ल है जी, और भी बहुत सारे लोग हैं. तो हमने शूटिंग अभी जस्ट कुछ ही दिन हुए हमने शुरू किया है. सब नॉट वर्क विद एवरीबडी बट जितने लोग साथ काम किया मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा. आई इंटरेक्ट विद पर्ल. हमने शूट नहीं किया अब तक बट ही इज़ वेरी वेरी स्वीट, soft spoken, down to earth. So I think we're going to have a great and gala time on set. ओके, दोनों मीडियम में काम किया है, स्मॉल एंड जी. तो कौन सा मीडियम सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है? Challenging I think would be television because not just for the actors, I think even for the creatives, क्योंकि every day you have to come up with something interesting and audiences को hold करके रखना है. And कुछ shows है जो सालों साल चलते हैं and they have such big great fan following. I think that's a very tough job. So सबसे मुश्किल job creatives का होता है मेरे according to me. And of course the working hours and like I said constant you're working and working on your craft. But as an actor I feel it's good कि आप रोज़ अपना episode देके you can add on to it. You can change something, you can experiment. So both mediums have their own benefits. In films you can do 2-3 type like films कर सकते हो आप, अलग अलग character play कर सकते हो. So सबका अपना plus and minus होता है. I enjoy doing both. ओके, देखिए साहब, जिस तरीके से हमने देखा कि 3 लड़कियां हैं, एक लड़का है बीच में, क्या कहना चाहिए? कितना अनफेयर है. मैंने भी बोला पर्ल को बैक स्टेज कि व्हाट इज़ दिस. हाँ, मुझे तो एक ही लड़का मिला, सबको एक एक मिला, आपको 3 मिल गए, आप तो बहुत लकी हो, वो भी इतनी खूबसूरत 3 लड़कियाँ. सो या आई थिंक दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एलिमेंट इन आवर शो. काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कैसे होने वाला है 3 गर्ल्स एंड 1 गाय, हाउ इज़ इट गोइंग टू प्ले आउट. सो वो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा शो जो 3 जून को आने वाला है. क्या यूएसपी होने वाली है बेपनाह प्यार की, कुछ कहना चाहिए? इट्स द स्टोरी लाइन. आई थिंक इट्स द स्टोरी लाइन जो लव स्टोरी है विद थ्रिलर एलिमेंट्स एंड विद सो मेनी कैरेक्टर्स दैट वी हैव इन अ शो. एंड धीरे धीरे वो सब ट्विस्ट्स एंड टर्न्स जब अनवील होंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना कुछ हो रहा है. सो आई कांट टॉक मच अबाउट द स्टोरी लाइन बट आई कैन से दैट इट्स अ वेरी द प्लॉट इज़ वेरी ग्रिपिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
डरा मत यार। ये क्या कर रहे हो? वेट कर चला जा। ओके बोल, सबसे पहले तो इस शो के बारे में बताइए। काफ़ी अलग सा शो है बेपना प्यार, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? डेफिनेटली ये काफ़ी अलग है और मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी इस तरीके का कोई कैरेक्टर प्ले नहीं किया, ना ही कभी देखा है। बिकॉज़ दुख के अलग अलग लेवल होते हैं। मैं नहीं कह रहा एक सैड स्टोरी है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टोरी है जिसमें आप बहुत सारे स्ट्रेंग्स देखेंगे। मतलब हमारे लिए हंसने और रोने के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते। बहुत कम लोग हैं जो उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हैं और मैं चाहूँगा कि भगवान ना करे कभी आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसा कोई दुख आए कि आप उस फेज़ में जाएं। लेकिन ये जो कैरेक्टर है रघुवीर, ये एक बहुत ही अजीब से स्टेट में है अपने ज़िंदगी के, जहाँ पे इस स्टेट में नहीं है, बहुत ही अजीब से स्टेट में है जहाँ पे सही और गलत के बीच में, प्यार और नफ़रत के बीच में वो फ़र्क नहीं कर पाता, खुशी और दुख के बीच में फ़र्क नहीं कर पाता, मतलब पागल समझते हैं लोगों से। तो एक वैसा कैरेक्टर प्ले करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मतलब वैसे अभी हम लोगों ने शूट शुरू कर दिया है तो मैं बता पा रहा हूँ, आफ्टर एवरी 10 मिनट्स ऑफ शूटिंग मेरे को खुद ही हेडेक होने लगता है। मैं ब्रेक लेके बैठ जाता हूँ, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, सिर दुखता है, प्यूकिश लगता है, अजीब सा लगता है, क्योंकि कैरेक्टर इतना इंटेंस है कि फॉर एनी एक्टर फॉर दैट मैटर, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल है। मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर इस शो को देखें, आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। और बड़ी बात यह है कि मेल सेंट्रिक स्टोरी है, तो बहुत कम ऐसा होता है कि मेल सेंट्रिक, मेरे ख्याल बालाजी में पहली बार हम लोग कोई ऐसा शो लेके आ रहे हैं जो मेल सेंट्रिक है, तो बहुत ही कमाल का लिखा हुआ है। मैंने जब निर्देशन ली थी तभी से मैं थोड़ा सा सनक गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से और अच्छा किया जाए इसको। ओके, पर इसी के साथ में जिस तरीके से आपने इस कैरेक्टर को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो कितनी प्रिपरेशन आपने करी है और क्या क्या रेफरेंसेस लिए आपने इस कैरेक्टर को लेकर? रेफरेंस तो मैंने नहीं लिया कोई, लेकिन प्रिपरेशन बहुत की है, क्योंकि ऐसा दुख, अगर आप किसी चीज़ से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी इंसान से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और वो इंसान इस दुनिया से चला जाए और आप अपनी दुनिया उसके बिना सोच ही नहीं सकते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जीना। तो जीने और मरने के बीच की जो स्टेट है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो वहाँ पे लोग आपको पागल समझने लगते हैं। उस तरीके का कुछ कैरेक्टर है। ओके, पर अगर आपके किरदारों की अगर बात करी जाए तो ऐसा कौन सा किरदार है जो आपके सबसे ज़्यादा क्लोज हो? काफ़ी अलग अलग तरीके के किरदार निभाए हैं आपने, जिस तरीके से ये अलग है, इससे पहले वाला नागिन में अलग था, और जो बाकी किरदार जो आपने किए वो भी अलग थे, तो विच वन इज़ योर क्लोज टू योर हार्ट? देखिए, अपने सारे ही बच्चे अपने को उतने ही प्यारे होते हैं, मेरे सारे कैरेक्टर्स मेरे बहुत क्लोज हैं, लेकिन फ़िलहाल जो रघुवीर कैरेक्टर है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है अब तक का। मतलब बीइंग ए एक्टर, मैं आपसे एक इमोशन शेयर कर रहा हूँ कि मैं बीमार फील करने लगता हूँ। अब ऐसा लगता है कि मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे क्या हो रहा है, वैसा वाला कैरेक्टर है। तो आई एम श्योर अगर मुझे करने में ऐसा सब कुछ लग रहा है तो आपको देखने में भी बहुत मज़ा आएगा। ओके, इसी के साथ में आपके गाने को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? थैंक यू सो मच। ये मेरा पहला गाना है और जिस तरीके का प्यार आप लोग दे रहे हैं, दैट्स ओवरवेल्मिंग। मैं बहुत खुश हूँ, आई फील ब्लेस्ड। मैं भगवान से और आप लोगों से बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ देखिए, सुनिए मेरे गाने को। पीड़ मेरी मेरे गाने का नाम है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके अगर सुनेंगे तो, और अगर अच्छा लगता है तो सबको सुनाइए। You have given a tribute to the Sridevi. What would you like to say that Sridevi को tribute दिया गया है लास्ट एपिसोड में, उस पर आपका? ये आप जब लास्ट एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक तरफ की बात करें तो बैक टू बैक शो दे रहे हैं जी, वो सुपर टैलेंटेड हैं, वो कुछ भी कर लें तो मुझे कम ही लगेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वो कुछ भी कर सकती हैं। एक टाइम पे एक इंसान 100 चीज़ें कैसे मैनेज कर सकता है, तो मैं उनसे बहुत सीखता हूँ। मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, स्वीट हार्ट, एंड वो बहुत टैलेंटेड है। मतलब जितना टैलेंट हम सोचते हैं कि नहीं यार ये बहुत टैलेंटेड, वो बहुत टैलेंटेड, मैं उनसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि ये तो दूसरे लेवल का ही टैलेंट है। मतलब मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, ट्रस्ट मी, वो एक जगह पे खड़े खड़े ना 15-20 काम एक साथ कर रहे होते हैं ऑलरेडी। दैट्स वेरी डिफिकल्ट एंड शी इज़ माइंड ब्लोइंग। हाल ही में आपने इंग्लिश
ओके पर इसी के साथ में जिस तरीके से शो में जो हम बाकी एक्टर से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि बहुत ही लगे हैं कि उनको एक 3 खूबसूरत लड़कियों के साथ में काम करने का मौका मिला। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी डेफिनेटली आप मानते हैं लकी हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मैं लकी हूँ क्योंकि बहुत खूबसूरत लड़कियाँ हैं मेरे आसपास और सबको ही अच्छा लगता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि बहुत अच्छे एक्टर्स हों आपके आसपास। इंपॉर्टेंट होता है कि वो कोऑपरेटिव हों। तो द बेस्ट पार्ट इज़ दे ऑल आर वेरी कोऑपरेटिव, दे ऑल आर वेरी गुड लुकिंग, दे ऑल आर वेरी गुड एट देयर क्राफ्ट। वो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। ओके पर इसी के साथ में क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे लास्ट टू योर फैंस? अपने सारे फैंस से सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो भी मुझे प्यार दिया वो बहुत है एंड आपने बहुत प्यार दिया नागिन 3 को, माहिर को बहुत प्यार दिया। मैं चाहता हूँ कि अब आप बेपनाह प्यार दें, बेपनाह प्यार को और रघुवीर को। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं एंड आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और मुझे आपके बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है। सो प्लीज़ देखिए एंड मुझे बताइए TRPs के थ्रू कैसा लगा आपको। फाइनली क्या नागिन 4 में दर्शक आपको फिर से देखता है? अभी तो आने दो, नागिन 4 में बहुत टाइम है। थैंक यू।